I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story, the channel that has committed its entire year and a half to the reportage of the COVID pandemic. There is not a heart in India that is not broken, that is not gripped by either fear or anxiety or anger or a sense of helplessness at the calamity that has befallen this nation in the second wave. And if there was one emotion that I would use to summarize what people are feeling that they've been left to fend for themselves, whether at the gates of hospitals that have had to shut doors because there are no beds or there is no oxygen, or cremation grounds jahan jagah hi nahi bachi. As one man who lost his brother told me at a Shamshan Ghat in Delhi, हम तो जी बिल्कुल भगवान भरोसे अब रह रहे हैं. It is time for civil society to step in as a colossal vacuum is created by policymakers who are unable to contain this second wave, literally like a catastrophe, an unprecedented humanitarian crisis. To talk a little bit about his initiative as a civil society voice, he emerged as a very, very critical activist in 2020 in the first wave of the pandemic. We're joined by actor, activist, author Sonu Sood. And Sonu, it's a pleasure to have you back, but I wish it were in happier circumstances. My own heart is broken this week, having lost my father to COVID. I know you've been working non-stop, round the clock. कोई मुझे लगता है कि भारत में कोई ऐसा दिल नहीं है जो टूटा ना हो. और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ज़मीन से कुछ ही क्षणों में किस तरह से सिविल सोसाइटी अपना रोल अदा कर रही है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी शुरू में कि आपके लिए ये कुछ दिन कैसे रहे हैं. व्हाट आर द काइंड ऑफ कॉल्स यू आर गेटिंग. सबसे ज़्यादा जो अपील्स आ रही हैं या क्राइज फॉर हेल्प आ रही हैं वो किस चीज़ के लिए आ रही हैं? First of all, Barkha, really sorry for Dad. I was in Bangalore when I got the news, और जब मैं अंकल के वीडियोस देख रहा था तो I could relate to him how great the soul he was, and he gave us a star like Barkha. So we are going to miss him always. Thank you. But like I said, Barkha, इतना दुख है कि हर मिनट में दुख होता है. हर सेकंड में आप निकलते हो उस दुख से, उभरते हो और आपको अपने से भी ज्यादा दुखी लोग दिखते हैं. मैं I've been getting calls 24/7. As I'm talking to you, my phone is ringing. They are desperate voices. I lost my father. Can you save my mother? I've lost my father, mother. Can you save my sister? But the night we try to save the sister, next day the same sister is critical. So the whole family is in the hospital. There's no one to take care of the medical bills. No one is there to take care of what exactly is going to happen if everyone is lost in this whole system. So I feel clueless. Getting a hospital bed for an individual is the happiest moment of my day. I've since morning I've got 19 beds in Delhi and UP, and someone told me that the biggest they're trying to get a single bed, they're not able to do it, and now you've got 18, 19, sir, you are lucky enough. So I feel blessed that I'm able to connect with those people who feel helpless when they call me. They said, sir, you are the only last hope, and you please guide us how to go about it. Where they talk. And what is the most common request you get? Is it for a bed or is it for oxygen? There's 40% of requests are for oxygen, another 40 to 50% are for beds, and rest 20-30% are for remdesivir and tocilizumab, all these injections, which we are trying to get to the best of our resources, abilities. We're trying to send from one state to other, but yeah, it's a very, very tough situation. You solve a case and then suddenly there's a new request that comes in, and that I don't know what to do about it. So how have you created a network? You're sitting in Mumbai. How are you? Let's say आपको कोई phone आता है, मुझे oxygen चाहिए. आप क्या करते हैं उसके बाद? My phone rings non-stop with the leads and with the requests. So I'm connected with every department. You say you need an injection, your medicine, a ward boy, to a hospital MD, to an oxygen concentrator importer, to a guy who fills the cylinders, to my friends in my college days who have bought cylinders and they get all this stuff
line up in the queues from 3 a.m. in the morning to get the cylinders filled. So yeah, it's the network is multiplying every single day, every single minute. So anyone who needs anything, we just send them. I just created this Telegram group also, in which we have close to 1 lakh people, a community that's trying to help each other, and we have a backup of almost 60 IT guys who are just downloading those real requests, getting them verified, and immediately giving them help so that they reach at the right time, because we are all getting forwards. Okay, these number of beds are available in such and so hospital, but they are all waste, because if you call them, either they are not reachable or you won't find any kind of help. So we don't look into that also, but you have to make those personal calls to make things move, otherwise it's not going to happen. 2020 और 2021 में क्या फर्क है? 2020 में मुझे लगता है कि लोगों ने घरों पे बैठ के डरे और बाहर नहीं निकले, और बहुत सारे लोग जो सड़कों पर हमने माइग्रेंट्स देखे, प्रवासी देखे, वो तकलीफों में थे, और लोगों ने उन सड़कों पे उन लोगों को उनकी जो तकलीफ थी महसूस की। पर आज वो लोग खुद बाहर आ गए, बाहर ला दिए गए हैं, मैं कहूँगा आए नहीं, बाहर ला दिए गए। आज एक हॉस्पिटल में बात कर रहा था, मैंने उसमें करीबन 3 बेड्स आज सुबह दिलाए दिल्ली में। उस हॉस्पिटल में 700 रिक्वेस्ट हैं, वेटिंग 700 रिक्वेस्ट। सो व्हेन आई कॉल एंड आई गेट देम अ बेड, सो आई फील गिल्टी कि यार मैं शायद किसी को जम तो नहीं कर दिया, तो मैं उनको भी बोलता हूँ प्लीज अगर ज्यादा इमरजेंसी वाले ले लो, पर ये भी इमरजेंसी वाले, यू टेक ए कॉल। सो इतना ज्यादा हेल्प है। मुझे लगता है कि जैसे खासकर दिल्ली, यूपी की अगर आप बात करें, तो पूरा का पूरा जो शहर है, मुझे लगता है अस्पतालों के अंदर है या अस्पतालों के बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब वो अंदर आएंगे। घरों में कौन लोग रह रहे हैं पता ही नहीं है। अभी मैं कुछ देर पहले आपसे इंटरव्यू से पहले मैं बात कर रहा था एक फादर से, he's got a son who's 30 years old, but he has got Down syndrome, and he said कि मेरे बेटे को आप बचा लो, बट उसको हॉस्पिटल में कैसे रखेंगे, and there has to be someone to take care, and he said whole day I will sit with the PP kit with my son to take care of him. So I just got that thing organized, and he'll be getting admitted today. But imagine वो मुझे हर घंटे फोन करता है कि सर बेटा तड़प रहा है, सर आप कुछ कर सकते हैं, and I feel so helpless, and I call again the hospital, can you get a bed, and they are also helpless because they don't have any beds left. So which is so sad. I'm getting people from Delhi to Patiala to Chandigarh to Karnal to Sonipat, and I'm trying to get them beds because Delhi is totally chocolate, and so is Uttar Pradesh. In 2020, I know you and I worked quite closely together. You were helping migrant workers get home. पर ऑक्सीजन किसी को दिलवाना, मैं अभी आपको एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट अपनी एक प्ले करके दिखाऊंगी। गुरुद्वारा है, उसमें ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। अब हम इस नौबत पे पहुंच गए हैं कि हमारे गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद नहीं, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जो मुझे लगता है एक बहुत स्मार्ट आइडिया है, और मैं दाद देती हूँ सिख समाज का जिन्होंने ये शुरू किया। लेकिन आप ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर कहाँ से रहे हैं, और इसका बंदोबस्त करने में आपको सबसे ज्यादा चैलेंज सोनू क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा चैलेंज होता है जब आप किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे देते हैं उनको घर पे, तो वो अपने घर पे आते हो, सिलेंडर्स कभी वापस नहीं आते, बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि भैया इसको वापस रिफिल कर लें, कुछ मेरे फादर ठीक हो सकते हैं, मेरी मदर को कुछ ना हो जाए, एंड यू ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ दोज वेसल्स टू गेट देम रीफिल्ड। और उनको वापस लाना भी, हमारे पास में कम से कम 100 से 150 लोग ऐसे हैं जिनको भी पे देम जस्ट टू स्टैंड इन द क्यूज टू गेट दोस डन। हमें पता नहीं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स किसके पास जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, पर हमें पता है कि रिक्वेस्ट तो आने वाले हैं, सुबह से लेकर रात तक फोन बजने वाला है, और जिसको जो मिलता रहेगा हम लोग देते रहते हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप वापस भेजिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑलमोस्ट 400 to 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स टू दिल्ली। आई एम जस्ट प्लानिंग टू गिफ्ट टू दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे वो यूज कर सके अपने घर पे और वापस कर सके जब भी वो ठीक हो सके। सो आई थिंक दैट आल्सो वी आर ट्राइंग, बट हर रोज नया एक चैलेंज है, उसको चैलेंज को टू मेक दोस एंड्स मीट, इट्स अ न्यू चैलेंज, उसको करें कैसे, बिकॉज हर इंसान घबराया हुआ है, दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स। और बोलते हैं कई बार आप जंगल में जब घुसते हैं, आप कितने भी सुरक्षित महसूस करें, आप चारों तरफ देखते रहते हैं कि कब आप पर आके कोई ना कोई अटैक कर देगा। हर फैमिली उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। जो ठीक है उसको डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, और जो नहीं ठीक है वो तो उसकी तो जिंदगी अस्पताल के बाहर या अंदर बीत रही है। सो विच इज वेरी वेरी सैड। मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा कभी देश ने कभी ऐसा समय देखा होगा। आई एग्री विद यू। मुझे तो अपनी एडल्ट लाइफ में ऐसी कोई मेमोरी नहीं है। लोग पार्टीशन की बात करते हैं, हम तब पैदा नहीं हुए थे। मुझे लगता है दिस लेवल ऑफ
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कभी नहीं हमने देखा। मैं आपको कुछ क्षण एक रिपोर्ट आपको प्ले करके दिखाऊंगी। गाजियाबाद में ये गुरुद्वारा है, इन्होंने ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि आप इनको सपोर्ट करें, या आप इसी तरह के मॉडल्स दूसरे शहरों में अगर रेप्लिकेट हो पाए, दैट इज वन वे टू गो फॉरवर्ड। बट दिस रिपोर्ट ऑफ एन ऑक्सीजन लंगर 1 hour from India's national capital. If we can play it, please. ऑक्सीमीटर तो भैया जल्दी से ऑक्सीमीटर दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ऑक्सीमीटर दो। आ गए भैया, आ रहे लेके आ Desperate cries for help by families like this one are now commonplace at the gates of this Gurdwara in Ghaziabad, the industrial town just 1 hour from the national capital. On the streets outside, there's a rush of cars, motorcycles, auto rickshaws, and cycle rickshaws. Across classes and neighborhoods, they're all coming here. This is the only such place of its kind for ordinary citizens to turn to when they are unable to get a bed or a hospital or even a COVID test, but are quite literally gasping for breath. This is, of course, only an interim measure. An oxygen langar, as the Gurdwara calls it, cannot replace a hospital, medication, or consistent treatment. But for now, it's all that people have. And as evening falls, the crowds do not dim, they only get larger and larger. Thankfully, the family that first drove in here in panic is now feeling much better. This is their story, and also the story of a country literally starved of oxygen. An image no Indian ever thought we would see in the national capital. If you pull out from that oxygen cylinder and I show you where I'm standing, I'm actually standing at a Gurdwara. If you look up here, this is a Gurdwara in Indirapuram in Ghaziabad in the state of Uttar Pradesh. And while Gurdwaras are known for their langars, the times are such that the Gurdwara, instead of providing Kada Prasad, is providing an oxygen langar. Yes, an oxygen langar. And what's been happening is that people, because this is a country that's gasping for breath, people who can't breathe, like this old lady here, their families are bringing them in a car. We saw her desperate family members just minutes ago rushing out, saying, somebody help me, koi madad kare. They come here, the Gurdwara then provides a cylinder like this one. It's strapped through to the impacted person, and at least they get some minutes of relief. And minutes ago, I saw Rishabh here, और जब आप गाड़ी से निकल रहे थे, आप रो रहे थे. मैंने देखा, मुझे बहुत दिल मेरे दर्द पहुंची. क्या हो रहा था नानी को? नानी की सांस बहुत उखड़ रही थी. मैं तो असल में नानी से मिलने आया था आज. तो मैं तबीयत बहुत ख़राब है इन्होंने मुझे बताई. तो मैं हर हॉस्पिटल में भाग के थक गया मोस्टली, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ. किसी ने कुछ नहीं किया. पत्नी मुझे बस बाबा जी का ने फ्रेंड को कॉल करी, उसने मुझे ये लिंक भेजा कि गुरु सिंह साहब जाके देखा उनका, और फिर यहाँ पर तुरंत दौड़े लेके आया. नानी की उम्र क्या है? नानी की उम्र है 77 ईयर ओल्ड. और ऑक्सीजन कितने लेवल तक गिर गया था? ऑक्सीजन पूरा गिर गया, तो मतलब 50. इतना आप घबरा क्यों गए, बताओ? मैं पैनिक इसलिए हो गया था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. मुझे कोई ले ही नहीं रहा था. किसके दरवाजे में? आप कहीं और भी गए पहले? हाँ, मैं कहीं और भी गया. कहाँ गए थे? मैं जीटी भी भागा, हर हॉस्पिटल भी भागा, हर जगह भागा. कहीं किसी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए. बस ये बाबा जी ने बस मेहर थी, उन्होंने ही आसरा दिया. कभी आपने सोचा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे दृश्य देखेंगे कि दिल्ली के 1 घंटा दूर यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे मैकडॉनल्ड्स की लाइन होती है, वैसे ये ड्राइव थ्रू एक ऑक्सीजन का हो गया? जी हाँ जी बिल्कुल. और लोग बहुत घबराए, बहुत पैनिक है सर मैम, बहुत पैनिक. अब नानी जी जब ले लेंगी ऑक्सीजन तो क्या करेंगे आप? अब आगे हम और सिलेंडरों का इंतजाम करने के लिए मेरे मामा जी अभी गए हैं कहीं से खरीदने. जी हाँ. तो और ये कितनी देर तक इनको चढ़ा कर रखेंगे? ये अभी 20 मिनट 10 मिनट और बोल के गए हैं. चले, आप ख्याल रखिएगा नानी जी का.
So that was just one excerpt, Sonu. That full story is available on Mojo Story. But I wanted you to have a sense of what's happening on the ground, and I know you have that sense from the phone calls you're getting. How are we going to plug this shortfall of oxygen? My heart breaks when I see all that. I've been listening to all these people, and when I see those visuals, I can imagine myself. I was thinking about that my parents are no more. Now today, I sometimes thank God they are no more. If imagine they would have been so helpless, Yes. and I was so helpless running for them. And you feel as a failed human if you are not able to get an oxygen for your loved ones. And a bed in the hospital for your loved ones, you fail as an individual. आपको लगता है कि जिंदगी में आपने क्या किया? मैंने बड़े से बड़े लोग देखे. I've been getting calls from US, my sister, everyone is calling, यार सोनू उसको बचा ले, हमारे दोस्त थे. They are all well established people living in the best of houses in Delhi, and they said, यार एक बेड दिला दे बॉस, कुछ भी करके एक बेड दिला दे. And imagine how helpless they are, and imagine what will happen to a common man जो एकदम गरीब आदमी जिसके पास सोर्सेस नहीं है कुछ करने के लिए, कौन उनका ध्यान रखेगा? इससे बुरा बरखा कुछ नहीं हो सकता. मुझे लगता है ऑक्सीजन ये तो मेरा हक था, अस्पताल तो मेरा हक था. 3 से 3,500 लोग हम लोग बोलते हैं कि हर रोज मरते हैं. पिछले let me tell you the numbers are much more because मैं तो cremation grounds जा रही हूँ. अभी तो हमारी official name, that's what they said. गिनती भी नहीं हुई है. So अगर हम बोले कि 1 लाख लोगों ने सोचा, आप सोचो कि अगर 1 लाख बेड हमारे देश में और होते, वो जो हजारों लोग बाहर हॉस्पिटल्स के खड़े थे और उनको मिल गए होते, बच जाते. These are the people who are dying. They don't deserve to die. They only die because they are not getting treatment at the right time. किसी का ऑक्सीजन 80 से 85 से 60 40 पहुंच जाता है क्योंकि उसको बेड ही नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला. So how the whole family is going to lead their life कि यार मैं अपने बच्चे को, मैं अपने माँ को, मैं अपने बाप को, मैं अपने भाई को, बहन को ऑक्सीजन नहीं दे पाया. They will live as failed humans. So I think we all have failed as humans. मुझे लगता है कि हम लोग भी फेल हो गए कि जब हम ऐसे दृश्य देखते सामने. Why do you feel it's a collective failure? I feel मैं हमेशा एक चीज बोलता था, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अस्पताल बनाओ, हेल्थ केयर सिस्टम देश का बहुत कमाल होना चाहिए. हम देखते हैं कि 1 to 2% हम लोग जो हमारा GDP का वो स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर के अंदर. सबसे ज्यादा जरूरी देश ने आज सीखा कि हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन सीखा तो किस कीमत पर सीखा? जब लाखों लोग हमारे बीच वाले जा चुके हैं जो इनोसेंट थे जिंदगी में, दे डिजर्व टू लिव. उनका सिर्फ दोष इस बात का था कि वो उस पीरियड में पैदा हुए जहां पर सही डिसीजन लाइफ के नहीं लिए गए, वहां पे वो उनको सिस्टम नहीं दिया गया जो डिजर्व करते थे. आने वाली जनरेशंस को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट कॉल एंड मेक दोज रूल्स कि बॉस मिले. लोगों के पास आज क्रिमेशन के पैसे नहीं है. मैं कितने लोगों का रोज करवाता हूँ. मैं उस दिन दरख्वास्त की, मैं बोला कि फ्री में कर दो क्रिमेशन पूरे देश भर में. 6 करोड़ रुपए, 6 से 6.5 करोड़ रुपए सरकार का लगेगा एक दिन का क्रिमेशन का, जितने लोग देश में मर रहे हैं. कर देना चाहिए कि बॉस जो आओ, लकड़ियां अवेलेबल है, क्रिमेशन अवेलेबल करके. लोगों के पास पैसे नहीं है करने के लिए. एंड यू सी व्हेन यू सी दोस विजुअल्स, इमेजिन अ पुअर मैन कहां से लकड़ियां लेके आएगा, जो आधा पैसा उसका हॉस्पिटल में लग गया उनको बचाने में, और जब बचा नहीं सकते एंड इट्स गॉन. So you are getting calls where people are saying we don't have money to cremate our dead. Every day they said कि यार मैं रात को किसी के लिए बड़ी कोशिश करता हूँ हॉस्पिटल के लिए, रेमडेसिविर के लिए, और जब मेरे को मिलती है मैं बोलता हूँ बॉस मिल गया. They said sir there no more, लेट हो गया आप सर. तो मैं आई फील वेरी सॉरी अबाउट इट. सर वो तो नहीं आप दिला सके, हमें एक स्मूथ एंट्री करवा दीजिए शमशान घाट में ताकि हम लोग आराम से उनका क्रिमेशन कर पाए. आई फील वेरी हेल्पलेस कि मैं क्रिमेशन ग्राउंड में किसी को फोन करूं कि बॉस ये फलाना बंदा है, इसको पहले बॉडी क्रिमेट करने दो, किसी और को बाद में करने दो. तो आई कांट डू दैट. बट एटलीस्ट आई फील कि जब बोलते हैं ना कि जो समय पे दी गई मदद जो होती है ना, वही मदद होती है. आज से 6 महीने बाद अगर कुछ ऐसे रूल्स बनेंगे, ऐसे लॉस बनेंगे, उसका कोई फायदा नहीं. आज जरूरत है, चोट आज लगी है, मरहम पट्टी भी आज ही लगानी पड़ेगी. पेरेंट्स के पेरेंट्स खत्म हो गए हैं, बच्चे छोटे छोटे अडॉप्शन के एक दूसरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि द लिटिल किड्स दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, दे हैव लॉस्ट देयर ग्रैंड पेरेंट्स. क्या करोगे? मुझे लगता है आज सरकार लॉ एक बनाए कि बॉस आज कोविड के अंदर जिस इंसान ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, माँ खोई है, बाप खोई है, कोई भी खोए, उन बच्चों की जिंदगी एजुकेशन फ्री रहेगी. कोई भी डिपार्टमेंट पढ़े, कोई भी स्कूल प्राइवेट किसी भी स्टेट में, सब फ्री है. लोगों को लगता है कि हाँ यार कोई खड़ा है, कोई साथ दे रहा है. कब देंगे हम लोग? सो आई फील हेल्पलेस एवरी सिंगल डे. मुझे नई प्रॉब्लम्स लोगों की रोज पता चलती है एंड आई फील कि यार किस देश में रह रहे हैं हम लोग.
ये आप थोड़े फेसेस ऑफ ग्रीफ एंड मोर्निंग देख सकते हैं जो हमने हॉस्पिटल में फिल्म की, और जो आपको एक हेल्पलेसनेस है कि हम किस देश में रह रहे हैं, एक एक उस पर एलैबोरेट करिए, क्योंकि मुझे भी लोगों में एक वो लग रहा है जैसे ऑर्फन्स ऑफ द स्टेट हो जाते हैं कि कोई है ही नहीं, देयर इज नो वन टू टॉक टू देम, उनको पता ही नहीं वो किससे बात करे, किसको फोन करे. It's so sad, Barkha. It's so sad. I mean, imagine you see those visuals and I mean, आपको उन विजुअल्स के अंदर जब बेटा अपनी माँ को पकड़ के खड़ा हुआ है और बोलता कि मेरी मदर को ऑक्सीजन दे दो, एक बेड दे दो. सो इमेजिन जब वो नहीं ले पा रहा, जो माँ उसके हाथों में उसको पकड़ के खड़ी है, उसको क्या लग रहा होगा कि मेरा बेटा मिन्नतें डाल रहा है, उसको पता नहीं बेड मिलेगा नहीं, उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, बेटे तू कर ले, मेरे को बचा ले. उसके माइंड में बचपन से लेके आज तक के सारे विजुअल्स आते होंगे कि ये खत्म हो जाएगा, मैं शायद नहीं बचूंगी, मेरा बेटे जिसको मैंने बड़ा किया, जो आज मुझे डाल रहा है, वो अकेला जिंदगी बताएगा. और बेटे को भी माँ को देख के वैसे लग रहा होगा. तो यू फील सो हेल्पलेस कि हम लोग क्यों ऐसा करने दे रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसी स्टेज पे आए कि हम लोगों को ऐसा करने को देखने को मिला, क्यों हम लोग तैयार नहीं थे, क्या हमारी. आप ये देखिए, ये एक बेटा अपनी माँ को लेके अस्पताल आया, वो ऐसे ही लेटी रही एम्बुलेंस में बाहर, राजकुमारी जी, और उसको नहीं मिला बिस्तरा, नहीं मिला अस्पताल, और उसके बेटे को उसको वापस ले जाना पड़ा. देयर शी इज. जिसकी आप बात करें वो सिचुएशन मैंने खुद रिपोर्ट की. अब इस बेटे के माइंड पे क्या गुजरेगी, आई डोंट नो. बरखा, मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बार मुझे लगा कि अच्छा वो मेरे माँ बाप नहीं है. मुझे पहली बार लगा कि अगर मैं उस चीज से गुजरता तो मैं तो शायद उठा के अपने पेरेंट्स को घुस जाता हॉस्पिटल्स के अंदर, जबरदस्ती घुस जाता कि बॉस दो, दे डिजर्व दिस. एक बेड तो चाहिए उनको, एक ऑक्सीजन तो चाहिए उनको, कैसे करेंगे. सो आई फील वेरी हेल्पलेस सीइंग ऑल दीस पीपल. दे डोंट डिजर्व दिस. नो वन इन दिस कंट्री, नो सिटीजन इन दिस कंट्री डिजर्व्स दिस व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. हम कितने भी हालात अच्छे कर लें, हम लोगों की कितनी भी मदद कर दें, बट हम इस रिजल्ट में फेल हुए हैं. बोलते ना, आप अगले साल टॉप कर जाए क्लास के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एग्जाम में हम लोग फेल हुए हैं बुरी तरह. आप चाइनीज एम्बेसडर के साथ भी आपकी कुछ एक्सचेंज, you're upset, you're feeling upset today, and it is upsetting, and I don't think there's anyone who hasn't cried in this week, from doctors to journalists to people like yourselves, because you're right, ये failing है, ये एक massive failing है. बरखा, मैं जब किसी को हॉस्पिटल के लिए बात करता हूँ तो आई स्पीक टू द एमडीज, मैं ओनर्स, डॉक्टर, सबसे बात करता हूँ. मैं रात को 3-3 बजे जो हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हैं, जो रजिस्टर फॉर्म भरते हैं, मैं उन वार्ड बॉय से, उन नर्सेस से, और वो जो बैठी थी उनसे भी मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ. उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ऊपर वाले ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप भी कोशिश करना है यार, शायद किसी को मिल जाए. बाहर कोई वेट कर रहा है आपकी वैन के अंदर, कोई, उसको प्लीज आप ले लीजिए अंदर. सो दे फील वेरी हैप्पी कि मैं बात कर रहा हूँ उनसे. I'm just setting that line to Sonu stabilize. तो करते नहीं है, because they are also. तो मुझे मैं हर रोज करता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है जब किसी को बेड मिल जाता है. मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मुझे किसी को बेड मिल गया यार. मेरी सिस्टर कॉल्ड मी 3:34 इन द नाइट एंड सेड, सोनू यार प्लीज बचा ले यार, ये हमारे मेरे इन लॉज की फैमिली से, एंड दे बिलीव कि तू कर लेगा. बट आई आल्सो फील हेल्पलेस. मुझे पता है इतना आसान नहीं है. मैंने उनको बेड दिला दिया, दे सेव्ड, एवरीथिंग इज ओके. बट these are the ones who could reach out to me, but there are many more who can't reach out to me, you, anyone, and they are dying every single day, so we have to save them. So what are you thinking, and how can people help you? How can people help you, Sonu? I don't know. I think everyone has to come out. सबको आना पड़ेगा बाहर, किसी ना किसी ढंग से लाना पड़ेगा. सरकारों को कुछ ना कुछ
इतना बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इतनी जल्दी लेने पड़ेंगे कि हम लोग कुछ और जाने बचा पाए। मुझे लगता है कि फ़ोन उठाना बड़ा ज़रूरी। मैं पिछले 6 दिन से मैं 2 ढाई घंटे मुश्किल से सोया हूँगा। सारी रात फ़ोन बजता है मेरा। मैं सारी रात फ़ोन पे हॉस्पिटलों में उनके एडमिशन कराने में लगा रहता हूँ। दिन में भी ऐसा लगा रहता है। मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार कौन सी फ़िल्म देखी? मैंने बोला कि मैं रिमोट को हाथ ही नहीं लगाया। कहाँ से फ़िल्म देखेंगे? पता है कि आपको 1 सेकंड के लिए फ़ोन आगे रखा तो देयर विल बी 200 रिक्वेस्ट जिनकी आ चुकी है करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को दे आर वेरी हेल्पलेस। आई नो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करें सर, हम कुछ नहीं कर सकते। सो आई डोंट नो। ऑक्सीजन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपने दोस्तों से कि ऑक्सीजन भेजो। मुझे पता नहीं मैं कितने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, लेकिन हम जितनी जानें बचा पाएं उतना ही कर सकते हैं। जाने तो जाने वाली हैं, फेल तो मैं जैसे बोला कि हम लोग हो ही गए हैं, बट जितनी बचा लो उतनी कीमती है। दैट्स व्हाट वी कैन डू। What is causing you the most trauma right now? What is causing you the most trauma? You're obviously upset, and I'm upset with you. तो मैं समझना चाहती हूँ, मैं तो समझती हूँ, मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आपके दिल में क्या गुजर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम कि क्लास के अंदर होते हैं ना, जब हम लोग कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कुछ फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, तो बोलते हैं यार इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की थी यार इसलिए फेल हो गया, इसने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए फर्स्ट आया, इसको डिस्टिंक्शन मिला। ये सब होता था क्लास के अंदर। हम उस क्लास के अंदर है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छी पढ़ाई भी की, जिन्होंने नहीं पढ़ाई वो सब फेल कर दिया हम लोगों ने। वो हर बंदा, जो इंसान आज ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किसी गुरुद्वारे के बाहर खड़ा है, या बच्चा है बेटा किसी ऑक्सीजन के लिए लाइन में सुबह 3 बजे से खड़ा हुआ है, वो उसको पता नहीं है कि ऑक्सीजन लेके वो सही समय तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं कि आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए, पर जो भी करना है, इतने हॉस्पिटल और हेल्थ केयर पे काम करना चाहिए। जो भी सरकारें आती हैं किसी भी स्टेट की हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हेल्थ केयर इतना होना चाहिए कि हम देश के लिए, हम एक देश के लिए एग्जाम्पल बने कि बॉस जैसे हम फेल हुए दुनिया में कोई फेल नहीं हो सकता। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल की बंद हो जाती, 12 लोग मर जाते हैं, उसमें डॉक्टर्स मर जाते हैं। ये इतिहास दोबारा किसी देश ने तो कभी नहीं लिखा होगा जो हमने लिख दिया। तो एटलीस्ट उस इतिहास के एग्जाम्पल से हम एक नया इतिहास लिखें कि बॉस आने वाले टाइम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम अगर है तो हिंदुस्तान के अंदर है। ऑक्सीजन में इस देश ने बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के कारण जिन्होंने जाने गंवाई हैं, उसी ऑक्सीजन ने हमें सिखाया कि इस देश ने लाखों बेड्स के हॉस्पिटल बना दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक वो हमें सीखना जरूरी है। अगर हम आज वो भी नहीं सीखे तो हमसे बड़ा फेलियर कोई नहीं। या फाइनली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ कैन पीपल हेल्प यू? आपने कहा लोगों को बाहर आना चाहिए। व्हाट इज द हेल्प दे कैन गिव यू? यू आर ऑलरेडी रनिंग अ नेटवर्क, यू इवन बीन आर्ग्यूइंग विद द चाइनीज टू रिलीज concentrators that you were trying to get through cargo. कैसे लोग आपकी मदद करें सोनू? वो कॉन्सेंट्रेटर्स अभी आ रहे हैं, फाइनली वी गॉट देम ओपन, वो भी आ रहे हैं। पर मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी क्षमता है, मेरे तक आप अभी तो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं और सब लोग कनेक्टेड भी हैं। मेरे ग्रुप्स के अंदर बेशुमार नंबर बढ़ चुके हैं, एंड स्टिल यूज द सेम नंबर कि मैं अप्रोचेबल हूं। मेरे साथ भेजिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ ऐसा नेटवर्क बनाइए। अगर आपको लगता है आप थोड़े से भी रिसोर्सफुल है, आपकी थोड़ी सी भी पहचान है, कहीं आपने जिंदगी में कुछ रिलेशंस बनाए हैं, तो आप जुड़िए। आप देखेंगे उस पहचान से हम कम एक जिंदगी जरूर बचा पाएंगे। मैं लोगों तक डे नाइट भेजता हूँ कि बॉस वहां पे चले जाए यार, ऑक्सीजन वहां पे है। मैं बताऊँ, मेरे कॉलेज के सारे ग्रुप वाले मैंने लोग लगा दिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके उन्होंने रख दिए, बांट रहे हैं। और हॉस्पिटल बेड्स के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर मैंने खड़े कर दिए, बेचारे जाके बातें करते हैं उनसे। मुझे लगता है कि आपको मोबाइल होना बहुत जरूरी है इस समय बाहर। मुझे पता है कि बाहर पैंडेमिक है, लोग लॉकडाउन लगे, बाहर नहीं आ सकते, पर अगर हम अंदर बैठे रहेंगे ना, तो लोग जो अंदर गए हैं ना अस्पतालों से, वो सही सलामत बाहर नहीं आएंगे, और जो बाहर खड़े हैं वो कभी अंदर नहीं जा पाएंगे। आपने एक जिक्र किया है जो मुझे लगता है जिसकी हमें थोड़ी और बात करनी चाहिए कि बच्चों का क्या होगा। You have spoken about what's going to happen. We've not even started thinking about some of the problems that are going to emerge from this moment. तो उस पे आप क्या पिकअप कर रहे हैं? What is happening to little children? बरखा, जब हम छोटे थे ना, जब हमारे पेरेंट्स के जाने की बात करते थे, हम लोग रोते थे कि बॉस हम बाहर नहीं जाएंगे, आप अकेले जाएंगे, कब वापस आएंगे, कल आएंगे या शाम को आएंगे, कैसे जाएंगे। एंड वी स्टिल सी इन आवर फैमिलीज की किड्स फील सो सिक्योर्ड व्हेन पेरेंट्स आर अराउंड, एंड व्हेन दे आर गोइंग आउट फॉर सम टाइम, फॉर अ डे और टू, दे फील क्लूलेस। इमेजिन किड्स हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और जो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। कितने कितने लोगों के रिश्तेदार हैं जो उन बच्चों को पाल पाएंगे 1 दिन, महीना, 2 महीना, और बहुत सारे लोग पाल भी लेंगे, बहुत सारे नहीं भी। इतने स्ट्रॉन्ग लॉस बनने चाहिए इन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोविड में अपनी जानें खोई हैं।
उनके बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आना चाहिए एजुकेशन, ये वो सब फ्री। उसके बाद जिन फैमिलीज ने अपने ब्रेड विनर्स खोए हैं, जिन्होंने खोए, उनके लिए क्या होना चाहिए कि आपकी फिक्स्ड इतने पैसे आपको फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जाने खोई हैं, आपको मिलेंगे ताकि वो पल सके, वाइफ्स अपने बच्चों को पाल सकें या रिश्तेदार पाल सकें, कोई भी पाल सके। कुछ अडॉप्शन के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए ताकि जो लोग इन्फ्लुएंशियल हो कुछ उन बच्चों को अडॉप्ट कर सके। मेरे पास आज इतने फॉरवर्ड्स हैं कि सर एक 2 साल की बच्ची है, एक 4 साल की, बोथ द पेरेंट्स और गॉन के, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने बोला नहीं यार, उसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, इट्स नॉट इजी। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिस्टम, अ प्रॉपर मशीनरी दैट शुड बी वर्किंग ओनली टुवर्ड्स इट, एंड दे हैव टू गिव द रिजल्ट्स नाउ। कि बॉस पैंडेमिक ऐसा नहीं कि हम खड़ा होगा 6 महीने बाद आपने लॉस बनाए और बोला कि हम ये कर रहे हैं। आज लोग मर आज रहे हैं, लोगों को आज दवा चाहिए। टेक दोज रोल्स। हमने बहुत दफा हमने इमीडिएटली कैसे ऑक्सीजन प्लांट्स बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इमीडिएटली कॉल ले रहे हैं ना, रातों रात कॉल ले रहे हैं। तो इस कॉल लेने में क्या दिक्कत है? कीजिए उनके लिए काम। शमशान घाटों में लोगों को हेल्प कीजिए। पीपल डोंट हैव एन एक्सेस टू डू इट। उनके पास पैसे नहीं है। हम लोग हर रोज भेजते हैं लोगों को कि बस करो। दूसरी बात, मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, एक शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, सब लोग अपने आ रहे हैं। वो बोले कि आप कोविड वाले नहीं, क्योंकि आपके घर पे मौत हुई, आप जब हॉस्पिटल में आओगे तो कोविड वाले हो गया। एक आदमी जिसको हॉस्पिटल मिला ही नहीं, हम देख रहे हैं कि 10 में से 10 नहीं 100 में से सिर्फ 2 लोगों को हॉस्पिटल मिलता। मैं सुबह से लेके आज मैंने अगर 8-10 लोगों को हॉस्पिटल बनाया, मेरा बेस्ट डे था आज। मैं दिला ही नहीं सकता, मेरे को 2 या 4 लोगों को बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल दिलाता हूँ। तो आम आदमी को तो मिलना ही नहीं हॉस्पिटल। तो मैक्सिमम लोग जो मर रहे हैं घर पे मर रहे हैं, उनको बोलते हैं आप कोविड वाले हो ही नहीं, तो आपको ये टोकन नहीं मिलेगा, आपको आप ऐसे आप संस्कार करके जाओ। तो ये लोगों को कभी वो मदद नहीं मिल पाएगी। अगर कभी अब हमारी सरकारों ने वो मदद देने की कोशिश की, तो दे आर नेवर गोइंग टू गेट दोज बेनिफिट्स, बिकॉज वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि वो कोविड के अंदर वो गुजरे हैं। सो ये सब चीजों को थोड़ा सा ईज आउट करके करना चाहिए। हमें पता है कि लोग हर घर के अंदर, अस्पतालों से ज्यादा लोग घरों में मिल रहे हैं, जिनको कभी अस्पताल मिला नहीं, उन लोगों के लिए, उन परिवार वालों के लिए। और आपको जब क्रेमेशंस के लिए हेल्प आती है तो किस तरह की कॉल्स आती है? बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनको मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मैं हेल्प किया था उनको। और पर उनको क्या जगह नहीं मिल रही कि लकड़ी की या अंतिम संस्कार जगह के लिए बोलते हैं, तो मैं जगह के लिए उनको हेल्प मैं बोलता हूँ कि मुझे प्लीज, मैं देखिए फोन कर दूंगा, पर लाइनें लगी हुई, तो मैं किसी को नहीं चाहता कि किसी की पहले क्रिमेशन होने वाली है तो आप लाइन जंप करके आप जाएं। तो दैट आल्सो आई डोंट वांट टू डू। हाँ, पैसे आपको चाहिए मैं भेज दूंगा, वी सेंड मनी टू देम कि हाँ जो भी आपको खर्चा लगता है हम लोग आपको भेज देंगे। बरखा लोगों के पास, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल के लिए बेड ट्राई कर रहा था, मुझे हॉस्पिटल का वो बेड मिल गया, और जैसे ही मैं किसी को फोन करने लगा, तुरंत एक मैसेज आया जो एक बेटी का था कि मेरे फादर के लिए हॉस्पिटल चाहिए एंड ही ऑक्सीजन लेवल्स आर डाउन टू 70-75। मैंने तुरंत वहां पे फोन किया, दे वर वेरी सरप्राइज कि उन्होंने फोन किया। मैंने बोला कि मैंने अभी शायद आपके फादर को मैंने बचाना लिखा था, अभी मैंने हॉस्पिटल का बेड इंतजाम किया, आप जाओगे क्या हॉस्पिटल? तो शी सेड अच्छा कौन से हॉस्पिटल? मैंने बोला ये वाला हॉस्पिटल में। तो फादर कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा तो घर पे ही मरूंगा, आई डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, एंड मुझे पता हॉस्पिटल जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। तो वाइफ इज क्राइंग ऑन द फोन कि प्लीज आप समझे। आई सेड प्लीज सर मेरी बात कराइए उनसे। आई स्पोक टू द फादर। आई सेड कि सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, लोगों को हॉस्पिटल मिल नहीं रहे हैं, आपको मिल रहा, प्लीज चले जाइए, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वादा करता हूँ, आप चले जाइए। दैट गाय रिफ्यूज टू गो टू द हॉस्पिटल। ही सेड कि मैं घर पे मर जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। और वो नहीं गया हॉस्पिटल। और जब भी वो लोगों को, वही लोग हमसे मांगते हैं कि बॉस आप ये नहीं कर पाए, आप कम से कम इतना करा दें क्योंकि हमारे पास पैसे। और लोग बरखा मुझसे पूछते हैं सर क्या क्या खर्चा रहेगा हॉस्पिटल का? सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल का, हमारा क्या बेड का खर्चा रहेगा? तो ही सेड डोंट वरी, आप जाइए, मैं करूंगा। इमेजिन दे वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, दे वांट टू लिव, बट दे डोंट हैव द मनी टू पे टू द हॉस्पिटल। कैसे बचाएंगे हम? इस चीज का क्या फॉर्मूला है? So what are we going to do? What are we going to do? I feel, मैं बार-बार बोलता हूँ, इस देश के अंदर has to set rules, laws and examples कि इस देश ने जो हेल्थ केयर के अंदर एग्जाम्पल सेट की है दुनिया के सामने अभी ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के साथ, वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करे कि देश के हर स्टेट के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, फ्री इलाज, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, सब कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम we'll be failed forever. How would you describe your mental state right now? I'm very disturbed. I can't see my kids. They are around. वो जाते हैं निकलते हैं, मैं परमानेंट मेरे फोन पे चार्जर लगा रहता है, which is directly connected, क्योंकि फोन की सारा दिन बैटरी जाती रहती है। मेरा 24 घंटे टाइम अब यही है कि लोगों को फोन करना और करना, and I feel very disturbed. I can't sleep in the night.
मैं सो लेन मेरे माय वाइफ सेज कि जस्ट स्लीप नाउ बिकॉज होल डे यू ऑन द फोन, और आपको इतना स्ट्रेस होता है कि किसी की डेथ हो जाती है आप बचाने लगते हैं, इट अफेक्ट्स यू सो मच कि बहुत से यार आप अभी उससे बात कर रहे थे यार हुए नहीं, एंड द डॉटर इज क्राइंग प्लीज सर मम्मी 2 दिन पहले गई है, पापा को बचा लिया. टुडे देयर वाज अ केस इन मथुरा, they have lost their grandparents, they have lost their elder brother, only brother and sister are there and both they are in the hospital and they both are requesting for ventilators. मैं क्या ventilators पे मत जाओ, and I don't know कि अगर कुछ उनको हो गया कौन, मतलब बचा कौन उनका संस्कार करेगा, कौन उनको बचाएगा, कौन उनको लेके जाएगा. सो आई फील कि ये हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर, व्हाट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. I have to end, but I have to ask you again, how can a lot of people in the audience live stream, they want to help you, they want to know what they can do? मैं बरखा मैं कुछ कलेक्ट नहीं करता हूँ फंड्स, ठीक है, ओपनली नहीं करता हूँ, बट आई डेफिनेटली शेयर द लिंक वॉट एवर लिटिल हमारे इनसाइड वेरी इंटरनल सोर्स वाले जो लोग दोस्त हैं आपस में करते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा लिंक जरूर बनाया हो जहाँ पे वो हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं. आई विल शेयर द लिंक विद यू आल्सो, सो आई मीन यू कैन स्प्रेड द मैसेज इन केस दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. वी आर मोर देन विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट कनेक्टेड, और नहीं भी होगा तो एटलीस्ट अगर आप फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आई थिंक हमें उन हाथों की जरूरत है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हाथ पकड़ के हम लोग कुछ जानों को तो बचा ही लेंगे. Terrible time, absolutely heartbreaking, absolute moment of failure. You're absolutely right. One doctor told me कि अगर कोई ऑक्सीजन ना होने से मरता है तो वो natural death नहीं, वो murder है. It's a failure of the institutions of this country, and we have to call it for what it is. Sonu Sood, bless you for all the work that you do, for keeping our faith even at a time when we have no faith. Please keep doing it, and we're with you all the way. We will with you all the way. God bless you, Sonu. Look after Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. And to our audience, we'll see you tomorrow with another deep dive as we continue to make our priority the second wave in this unprecedented humanitarian crisis in our country. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalists.